Hello, dear student. Today we are going to start module 4 three-phase AC machine. Before this class, in the same module, we have discussed DC machines. Now we are going to discuss three-phase AC machines. Three-phase AC machines, as in case of DC machine, in case of motor, input was DC, while in case of generator, output was DC. But now in case of AC machines, the input as well as output both are AC. So now we are discussing three-phase AC machines. Three-phase AC machines divided into two categories. One is known synchronous machines and other one is known as asynchronous machines. Asynchronous machine is also known with the name induction machines. So you see here the term synchronous machines and synchronous. So what is the meaning of synchronous? We are going to discuss this. So dear students, if you see here, as I have already discussed in three-phase AC, that three-phase AC supply can be represented by like this. The waveform of three-phase AC is something like this. एक्स एक्सिस पर हम लोग थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, वाई एक्सिस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अगर हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं तो देखो बच्चों, हम थ्री फेज की वेवफॉर्म को किस तरह से डिनोट कर सकते हैं. Like this, we connect this terminal to this and this terminal, this and this from this and this one. Like the same way we will connect the waveform in this fashion, like this and this, and here like this one. Now you see here, this is one wave from here to here, suppose known as VA, and another wave, this one, VB, and wave, this wave VC. If you see here, 0 degree, 60, 120, 180, 240, 300 and 360. We can represent VA equal to VM sin omega t and VB equal to Vm sin omega t
you see here waveform A starting from the origin, but waveform B is starting from 120. It means waveform B lagging by 120 degree from waveform A. So you can write here like this. Like the same way you see here VC from origin 120 and 240. So VC is starting from 240. It is lagging by 240 degree. So VC equal to Vm sin omega t minus 240 degree. Question 1, second and third. These are the phase voltages of three phase AC. Vm is the peak value. Vm is peak value. तो you see here VB VA से 120 डिग्री से लैग कर रही है एंड VC VA से 240 डिग्री, और अगर आप देखें तो VC VB से भी 120 डिग्री से लैग कर रही है। अगर हम इनको फेजर डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या होगा। अगर हम देखें कि VA की डायरेक्शन ये है VA, तो VB कहाँ होगा, इससे 120 डिग्री लैग करते हुए ये कहाँ होगा VB, और VC VA से या तो 120 डिग्री लीड करते हुए या यहाँ से 120 डिग्री फर्दर लैग करते हुए ये क्या होगा आपका VC। तो इन तीनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है 120 डिग्री, 120 डिग्री एंड 120 डिग्री। अब आप देखिए मैं यहाँ पर जो वर्ड मैंने यूज़ किया सिंक्रोनस का मैं मीनिंग आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम ये जो थ्री फेज मैंने वोल्टेज दिखाई हैं यहाँ पे VA VB VC, द नेचर ऑफ द वोल्टेज इज साइनोसॉइडल बट all the three voltage are lagging with each other by 120 and 120 degree. You see here if we consider a single winding and we connect this winding through a AC source, VA equal to Vm sin omega t. Then current start flowing through this winding, I equal to the nature of that current is also sinusoidal, और जैसे ही ये करंट इस वाइंडिंग से यहाँ फ्लो करेगी तो ये वाइंडिंग भी क्या होगा, एक फ्लक्स बनाएगी फाई इक्वल टू फाई एम sin omega t. The nature of that flux is also sinusoidal, which I have already discussed this in transformer. But अगर हम थ्री फेज AC सप्लाई एक सिंगल वाइंडिंग के साथ कनेक्ट ना करके थ्री फेज AC वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं तो देखना इससे क्या होने जा रहा है। देखो बच्चों, अब मैं यहाँ एक थ्री फेज की वाइंडिंग ले रहा हूँ जिसको मैंने 360 डिग्री अपार्ट करके एक दूसरे से रखा है। यहाँ पे एक वाइंडिंग मैंने सपोज करो ये ली, जिसको हम नाम दे रहे हैं A डैश, और जो सेकंड वाइंडिंग है उसको मैंने इससे यहाँ पे 120 डिग्री अपार्ट करके ये सपोज बी डैश, और इससे भी 120 डिग्री यहाँ अपार्ट करके ये सपोज हमने रखा C,
और इसका दूसरा टर्मिनल C डैश। तो इस तरह से हमने एक 3 फेज वाइंडिंग ली, जिसमें से एक वाइंडिंग कौन सी है, A डैश, दूसरी वाली वाइंडिंग B डैश, और तीसरी वाइंडिंग क्या है, C डैश। तो अगर हम इस तरह से एक 3 फेज वाइंडिंग लेते हैं और इस 3 फेज वाइंडिंग को हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर एक 3 फेज AC सप्लाई के साथ, तो क्या होगा, A वाइंडिंग को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, VA वोल्टेज के साथ, B वाइंडिंग को हम कनेक्ट करेंगे VB वोल्टेज के साथ, और C वाइंडिंग को हम लोग कनेक्ट करेंगे VC वोल्टेज के साथ। तो बेटे फर्स्ट ईयर में आपके बहुत ज़्यादा ये डिटेल में ना होते हुए मैं आपको जस्ट ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम एक 3 फेज वाइंडिंग को किसी 3 फेज AC सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होने लगता है। जब हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे सिर्फ एक वाइंडिंग की, अगर हम एक वाइंडिंग को सिर्फ एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये जो वाइंडिंग हमें फ्लक्स बनाती है, तो नेचर ऑफ दैट फ्लक्स क्या है, वो साइनोसोइडल है, पल्सेटिंग नेचर है। बट अगर हम यही 3 फेज सप्लाई 3 फेज वाइंडिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताते हुए बता रहा हूँ कि जब हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से, तो अब जो फ्लक्स हमारा जो पहले की यहाँ वाले केस में पल्सेटिंग नेचर का था, साइनोसोइडल नेचर का था, अब वो यहाँ पे रोटेटिंग नेचर का बन जाता है। मीन्स अब ये फ्लक्स हमारा रोटेट करने लगता है। ये मैं आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो फ्लक्स हमारा यहाँ पे सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करने लगता है। तो ये जो फ्लक्स है, ये जो फील्ड है हमारा, जिस स्पीड से रोटेट करता है उस स्पीड को हम NS से डिनोट करते हैं, और NS को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जो बच्चों वो और NS जो इक्वल होता है वो NS इक्वल टू होता है 120 F/P के। तो यहाँ पे NS तो अभी मैंने क्या बताया, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स ये जो हम 3 फेज AC सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, तो 3 फेज AC सप्लाई जैसे ही 3 फेज वाइंडिंग को मिल रही है, तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब नेचर ऑफ दैट फील्ड क्या होगी, वो रोटेटिंग नेचर की होगी। तो NS को हम कह रहे हैं, बट F क्या है यहाँ पे, ये जो हम 3 फेज AC सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं इसकी जो फ्रिक्वेंसी है F क्या है, फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई, और P क्या है यहाँ पे, P है नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, कि हमने कितने पोल इसके अंदर क्रिएट किए हैं, 2 पोल बनाए हैं या 4 पोल। अब जैसे हम बात करें इंडिया के अंदर जो सप्लाई की फ्रिक्वेंसी कितनी है, F कितना होता है, 50 हर्ट्ज़। और अगर हम यहाँ पे 2 पोल की मशीन लें, P इक्वल टू कितना लें, 2 पोल, तो बच्चों देखो NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, F का कितना है 50/2, और ये हमारा कितना आ जा रहा है, आप देखना 3000 RPM। तो देखो अगर हमारी 2 पोल अगर हम यहाँ लें, उसको 3 फेज AC के साथ कनेक्ट करें, तो यहाँ पर जो फील्ड प्रोड्यूस होगा वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा होगा, 3000 स्पीड से। अगर हम P की वैल्यू 4 ले लें तो तब NS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500 RPM। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये मैं क्यों बताने जा रहा हूँ, 3 फेज किसी भी मशीन को, 3 फेज AC मशीन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी मशीन को रोटेट कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रोटेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड रोटेट नहीं करेगा तो हमारी मोटर भी रोटेट नहीं करेगी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट दिया है किसका, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, तो ये मैंने आपको बताया है।
कि कैसे हम जब 3 फेज एसी को एक 3 वाइंडिंग जो एक 120 डिग्री अपार्ट करके रखी गई हैं उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो हमें एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो हम लोग मोटर स्टडी करने जा रहे हैं, तो अगर वो मोटर जिस स्पीड से हमारा फील्ड रोटेट कर रहा है, अगर वो मोटर भी उतनी ही स्पीड से रोटेट करेगी तो वो मशीन कहलाएगी हमारी सिंक्रोनस मशीन। और अगर मशीन हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करेगी या तो वो सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे रन करेगी या सिंक्रोनस स्पीड से अबव स्पीड पे रन करेगी, इन दैट केस दैट मशीन इज़ नोन एज एसिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन। तो अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने जा रहे हैं सबसे पहले इंडक्शन मशीन्स को। ठीक है, थैंक यू बेटे। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे इंडक्शन मशीन।